Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Thank you everyone for joining us. So as you know कि आज हमें Dr. Gohar Mahmood ने join किया है. So before his formal introduction, I would request Alvina to start the session with the recitation. Alvina, can you hear me? Yeah. Okay. Yes, ma'am. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان آمنت بالله صدق الله العظيم جزاك الله. Jazakallah. Now I will introduce Dr. Gohar. Dr. Gohar Mahmood Azim is the Registrar of the Department of Neurology, Services Institute of Medical Sciences, Lahore. Dr. Gohar has 5 years of experience in psychiatry. He has delivered scientific talks and lectures on neurology, psychiatry, psychological well-being, happiness, and mindfulness. And he also has his own YouTube channel. You will find very useful videos there about different psychological and neurological disorders. I came to know about him through that YouTube channel. So I reached out to him around a month ago. I requested him to deliver a talk at Namal, and he was really kind enough to agree. So thank you so much, Dr. Gohar, for joining us. And now it's over to you. Thank you so much, Dr. Ikra. Well, जब मैडम ने मुझे कहा तो I was very excited क्योंकि यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स से बात करना मुझे अच्छा इस वजह से लगता है because they are the future of the country and to help them in any way, जैसे कि जब हम यूनिवर्सिटी में थे या हम कॉलेजेस में थे तो that is the best way forward. अच्छा, Dr. Ikra, only the host can share in this meeting. तो आपको मुझे co-host बनाना होगा. Sure. If you can do that. Let me allow you. You want to share the slides, right? Yes. Okay. So yeah, can you do it now? और आज का जो yes I can. तो आज का जो हमने टॉपिक सिलेक्ट किया था वो भी मकसद ये था कि something that will help. Can you guys hear me? Yeah, we can hear you. Okay. Yes, and you can see the slides, I'm sure. Yeah.
ठीक है, जो टॉपिक हमने सिलेक्ट किया था उसका भी मकसद ये था कि समथिंग दैट विल हेल्प यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स, और समथिंग दैट एवरीवन, हर बंदा जो किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर हो, इवन इन पाकिस्तान के किसी भी हिस्से में या पूरी दुनिया के अंदर, वो इसको फेस करता है। और इसको मैनेज करने से यूनिवर्सिटी परफॉर्मेंस बहुत इंप्रूव हो सकती है, और अगर यूनिवर्सिटी परफॉर्मेंस इंप्रूव हो तो लेटर ऑन लाइफ जो उनसी है ना, उसके अंदर भी बेनिफिट आता है, और ऑब्वियसली यू हैव अ गुड टाइम इन यूनिवर्सिटी, एंड हु डजंट वांट अ गुड टाइम। तो आज हम बात करेंगे मैनेजिंग स्ट्रेस और कुछ रिलेटेड साइकोलॉजिकल इश्यूज जो यूनिवर्सिटी के अंदर होते हैं, व्हिच एवरीवन फेसेस। सो ये मेरा कॉलेज है, well it's not as big and as impressive as your institute, but it's Service Institute of Medical Sciences in Lahore. I studied there from 2008 to 2013, and then I've been specializing there and working there since then. So it's a nice place. If you ever come to Lahore, you can visit it. So today the agenda would be number 1, इसको हमने light रखना है, ये कोई किसी को पकड़ के इस क्लास के अंदर नहीं डाला. I hope it stays informative and enjoyable. We will want to gain something, कोई actual फायदा हो, and I think all talks should be based on this philosophy कि after the talk you must be able to have something new in your mind and able to change how you deal with the world. उसको हम कोशिश करेंगे कि ऐसा ही हो. पहले हम बात करेंगे पहले पार्ट में यूनिवर्सिटी में स्ट्रेस क्या होती है स्टूडेंट्स के ऊपर, उसको कोप कैसे किया जाता है, और बाद में हम बात करेंगे कुछ कॉमन साइकियाट्रिक डिसऑर्डर्स अराउंड अस. अगर स्ट्रेस नहीं है, कुछ ज्यादा है, तो फिर वो क्या है. Well, this is your institute, if I'm not wrong, and if it were not for COVID, I would love to visit it, and someday I hope I do. आप लोग अब यहाँ पे आ चुके हैं, ठीक है जी, यूनिवर्सिटी में आप पहुंच चुके हैं, दाखिले आपको मिल गए हैं, बड़ी बड़ी कामयाबी हासिल हो गई है, सारे लोग जो उनसे ना वो खुश हो गए हैं, एंड दिस इज हाउ इट शुड बी. 4 साल बाद जब आपका प्रोग्राम खत्म होगा, यू विल बी ग्रेजुएटिंग. दुनिया जो उनसे ना बड़ी जबरदस्त होगी, है क्या ही बात है, आपको रॉकेट लग जाएंगे और आप जो उनसे ना उड़ के आसमान में चले जाएंगे, आप CEO बन जाएंगे, CFO बन जाएंगे, and all sorts of things. And yes, most of the things will happen. Guys will end up looking like this, huh? And girls will end up looking like this, because university is the platform for your later life, and who doesn't want all the good things in life, and that is what it leads to. But actual जो scenario होता है वो थोड़ा सा वहां तक पहुंचते इस तरह की कुछ पिक्चर के अंदर it gets stuck in this when you have so many issues bothering you. Time management, पढ़ाई, कुछ चीज समझ नहीं आ रही, करना क्या है, and so many issues that are causing you distress in university life, when it should be कि बहुत ही जबरदस्त 4 साल हमारे गुजरे, हमारी नई फ्रेंडशिप्स बने, we are getting ready for the future. We end up also passing through sometimes a tough time, जिसके ऊपर बहुत सारे factors हमारे ऊपर काम करते हैं, and some people end up not enjoying the university that much, and for large parts इसकी बहुत सारी वजूहात हैं. We'll go through some of them, but ideal situation के अंदर this should be minimum. जो आपका पीरियड इस शक्ल के अंदर गुजरेगा, this should be minimum. और अगर हम वापस आए, वो जो फ्लाइट आसमान की तरफ जा रही है, that flight should be the maximum which we should be going on. वो ट्रैजेक्टरी होनी चाहिए. So सबसे पहले तो डिफाइन करते हैं यार स्ट्रेस होती क्या है. So if you've gone through intermediate and everything, you must know कि एक physical stress भी होती है, जिसको actual stress की definition होती है कि किसी चीज के ऊपर जब एक प्रेशर आता है तो उसका क्या रिएक्शन होता है. तो हम जब मेंटल स्ट्रेस की बात करते हैं या फिजिकल स्ट्रेस की बात करते हैं इन अ ह्यूमन पर्सपेक्टिव, तो इट इज बॉडीज रिएक्शन, कोई भी चेंज जो उसको एडजस्टमेंट और रिस्पॉन्स मांगती है. तो वेल यूनिवर्सिटी लाइफ के अंदर एवरीथिंग इज चेंजिंग, ठीक है, everything needs an adjustment, a response. हर चीज जो पहले आपकी लाइफ की है, it enters into a new frame. तो you've got a lot of stress in university. ठीक है जी, ये जो सारे चेंजेस आते हैं, इसको फिजिकली, मेंटली और इमोशनल रिस्पॉन्सेज जो उनसे है ना, वो बॉडी के यूज होते हैं मैनेज करने के लिए.
स्ट्रेस इज अ नॉर्मल पार्ट ऑफ लाइफ, अगर वो नॉर्मल अमाउंट तक हो और अगर वो नॉर्मल तरीके से कोप की जाए, और इट कैन बी पॉजिटिव। अगर किसी के ऊपर एग्जाम आ गया 2-3 दिन बाद, तो उसकी स्ट्रेस लेना और थोड़ी सी स्ट्रेस होना या मॉडरेट अमाउंट होना जो उसकी लाइफ को खराब नहीं करी, इट वुड कीप द पर्सन अलर्ट, मोटिवेटेड एंड रेडी टू अवॉइड डेंजर। सो सम स्ट्रेस इज गुड। तो वो लोग जो हमें मिलते हैं और कहते हैं यार मुझे तो किसी चीज की स्ट्रेस नहीं है, जो होना है हो जाए, ठीक है जी, मैं फेल होना है उड़ जाए, जो अगर कोई बंदा मेरे खिलाफ हो जाए, ठीक है, किसी को मेरी बात अच्छी लगती है और लगे किसी को नहीं लगती, so that again is not a very healthy and attitude that we may want to keep in the long term, क्योंकि some of the good things that stress does, sometimes I give an example कि अगर आप बैठे हैं और खुदा न खास्ता कोई सांप या कोई शेर आपके पास जो इंसान है, जंगल में बैठे हैं तो वहां पे आ गए हैं, तो आपकी बॉडी एकदम जो इंसान है वो कुछ रिएक्शंस शो करेगी, ठीक है। आपकी आंखों की पुतलियां जिसको पिपल्स कहते हैं वो बड़े हो जाएंगे, ठीक है, आपके रोंकड़े खड़े हो जाएंगे, ब्लड प्रेशर तेज हो जाएगा, दिल की धड़कन तेज हो जाएगी, आपके मसल्स टाइट हो जाएंगे, आप रेडी होंगे भागने के लिए, आप एक कंप्लीट रिएक्शन फाइट एंड फ्लाइट मोड का आपका जो इंसान आ जाएगा। तो समटाइम्स दैट रिएक्शन इज गुड टू हैव कि आप उसके ऊपर जो है ना एक्ट करें और भाग जाएं वहां से। लेकिन अगर शेर और सामो नहीं भी है और वो तब भी आ रहा है, या ऐसा आ रहा है कि भाई वो आप सिचुएशन से निकल गए हैं और वही आपका जारी रह रहा है, देन इट बिकम्स डिफिकल्ट एंड देन इट कॉजेज अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, क्योंकि उस पीरियड के अंदर आप लर्न नहीं कर सकते, आप नई चीजें गेन नहीं कर सकते, आप आपका जो फाइट एंड फ्लाइट रिएक्शन है वो इंसान का कंफर्ट रिएक्शन नहीं होता है, इट कॉजेज अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स एज वेल। स्ट्रेस विदाउट रेजोल्यूशन, इट मे बिकम अ डिस्ट्रेस एंड वी डोंट वांट डिस्ट्रेस, डू वी? तो स्ट्रेस की 3 मेन टाइप्स अगर हम देखें तो एक्यूट हो सकती है, एपिसोडिक हो सकती है, क्रॉनिक हो सकती है। उस टाइम पे आए तो एक्यूट है, अगर बार बार होना शुरू हो जाए, कॉज हो ना हो, एपिसोडिक होती है, अगर रहना ही शुरू हो जाए तो क्रॉनिक, जो कि बहुत डेंजरस किस्म की स्ट्रेस होती है। सो व्हाट आर द मेजर कॉजेज ऑफ स्ट्रेस इन द यूनिवर्सिटी? और ये चीजें आपको एजुकेट करने का मकसद ये भी है, आई एम हैप्पी कि डॉक्टर इकरा ने लेक्चर अरेंज किया है, टू आइडेंटिफाई पीपल जिनके साथ ये मसला हो रहा है एंड टू प्रोवाइड देम हेल्प। और आप खुद भी हो सकते हैं, ठीक है, जिसको ये जरूरत हो सकती है सारी पेप टॉक, ये सारी गाइडेंस की, और people may expect you to help them and end up being in a better place. So यूनिवर्सिटी में क्या है जी, नई यूनिवर्सिटी के अंदर चले आते हैं, अच्छे भले हम कॉलेज के अंदर सेटल्ड थे, स्कूल के अंदर सेटल्ड थे, पुराने सारे दोस्त चले गए, नए दोस्त आ गए, कैसे बने, कितना टाइम लगा, and it sometimes gets difficult. University students are more competitive, are more focused towards goal rather than without रीजन, जो जिसको आप कहते हैं कि ट्रू फ्रेंडशिप होती है, लेकिन जितनी कॉलेजेस स्कूल्स छोटी एजेस के होती है उससे कम होती हैं। एंड देन यू आर ग्रोइंग अप, यू आर नॉट 12 anymore, you're 16, 18, 20, 22, so you've got emotional needs to be loved, वो सारा कुछ आता है। फाइनेंशियल स्ट्रेस, यूनिवर्सिटी कैन बी एक्सपेंसिव एज वेल, ठीक है, हॉस्टल में रहना एक्सपेंसिव हो सकता है, पीयर प्रेशर, वो तो ये कर रहे हैं जी, वो तो ये कर रहे हैं, कुछ सिगरेट पी रहा है, कुछ 100 चीजें कर रहा है, तो उनको ज्वाइन करना है कि नहीं करना, अनफॉर्चुनेटली दैट इज अ पीयर प्रेशर एज वेल, ठीक है, वो पार्टी करने जो उनसे इस्लामाबाद की तरफ निकल रहे हैं, सो टू सम पीपल इट माइट बी अ बिग स्ट्रेस। Sometimes we lack a direction that ends up being a cause, ये हम later on भी डिस्कस करेंगे। ये हमारे पाकिस्तान के अंदर, बल्कि मोस्टली यूनिवर्सिटीज दुनिया के अंदर उस तरह काउंसलिंग स्टूडेंट्स की नहीं अवेलेबल होती जो कि उनको हेल्पफुल हो सकती है इस सारी सिचुएशन को कोप करने के लिए। दे डोंट नो व्हाट दे आर डूइंग इन द यूनिवर्सिटी, दे डोंट नो कि आगे कैसे चलना है, अगर फेल हो गए तो क्या होगा, अगर क्या कहते हैं प्रॉब्लम के अंदर आ गए हैं तो फिर किसके पास जाना है। तो this is a lack that universities have. Achha, I would like to say if anyone wants to ask something that a really pressing thing in the middle, you can just leave a message और हम वो तब address कर सकते हैं। And if somebody wants they want to ask a question real quick during the talk, तो वो भी आपको कर सकते हैं if it's really important, और later on तो हमारे पास opportunity होगी।
Also, universities have increased educational demands and difficulty. हमारे साथ ये हुआ था जब मैं मेडिकल कॉलेज में आया था. I don't know what's the situation with you. बच्चे सारे जो थे ना वो FSC के अंदर 90%, 85%, 95% नंबर लेके 100 में से 100 नंबर लेके पहुंचे. और जब उनका पहले ही टेस्ट 2 दिन बाद हुआ ना यूनिवर्सिटी कॉलेज के अंदर, तो किसी बच्चे के 100 में से 50 आ रहे हैं, एक नंबर से पास हो रहा है, किसी के 49 आ रहे हैं एक नंबर से भी. तो it was completely a difficult and different dynamic. तो उसको कोप करना भी it was difficult. जो टीचर स्टूडेंट डायनामिक है वो भी यूनिवर्सिटी के लिए चेंज हो जाता है. तो वो जो पेरेंट की तरह टीचर एक्ट करते हैं स्कूल के अंदर, तो यूनिवर्सिटी के अंदर एंड कॉलेजेस के अंदर टीचर बिकम समथिंग डिफरेंट, who just working for themselves also, but just like a helper बन जाते हैं rather than a parent like figure. There are, but most of them, I'm saying, bullying and targeting होती है. But the main thing is that there is a big change that is happening, and change is a cause of stress. So it is a pandemic. अगर हम कहें कोविड बहुत बड़ी pandemic है, तो ये भी बहुत बड़ी pandemic है. ठीक है, उन्होंने अमेरिका के आईवी लीग्स के स्टडी किया, this found out. अच्छा ये ranges है, मैंने I chose this because it was a little Dr. Gohar, we can't hear you. I think there is a disruption in your voice. Dr. Gohar, are you there? Students को confirm कर सकते हैं अगर आपको डॉक्टर गोहर की आवाज आ रही है? नहीं आ रही मैम हमें भी. सॉरी मैम, आवाज नहीं आ रही है. Okay, okay. It's okay. उनके connection में कुछ problem होगा. He will reconnect. So जब तक डॉक्टर गोहर रिजॉइन करते हैं, मैं आप लोगों के अटेंडेंस मार्क कर रही हूँ. आई थिंक कुछ स्टूडेंट्स हमारे पास दूसरे सेशन से भी हैं. आई कैन सी एमन, अब्बास. सो वेलकम गाइस, एंड आई एम मार्किंग योर अटेंडेंस जो आपके फर्स्ट ईयर की क्लास है.
हेलो, अस्सलाम वालेकुम. ओके, आई थिंक आपका इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो गया. ओके, वी आर वेटिंग फॉर यू. ऑलराइट. Dr. Gohar, can you hear us now? Yes. तो हम कहाँ तक पहुंच गए थे? हम स्लाइड्स पे थे. स्ट्रेस, कोविड. Yes, COVID and stress. So just let's take a small break. If अगर आप लोग definitely keyboard से अपने response लिख सकते हैं तो yes or no में आप लोग response करें. How many of you are stressed because of COVID? Let's see yes or no. Chat के ऊपर हमारे पास जो है ना वो आ जाएगा. Nope. Okay, Danish is happy with COVID. Very good. Akib, no. Samina, no. Mohsin, no. Everyone's happy. That is very good. क्योंकि क्या कहते हैं, once you understand something, जिस तरह हमारे 6, 8, 10 महीने लग गए हैं, तो rather than being stressed, why don't we do something about it? And I'm sure you guys are following SOPs and all the guidelines और अपनी families का ख्याल रख रहे हैं. And that is the good way कि आपने strategy बनाई कि यार ये problem आ गई है पूरी दुनिया के अंदर और ये हमें तंग कर रही है, तो हमने इसको ऐसे deal करना है. Maybe आपको जो stress आना that be obviously less. So yes, let's go to this slide. So what stress does to the body? Lots of things. ठीक है. This is a picture. आप उसको पढ़ सकते हैं. We'll go through these in detail. Important is कि long term can cause serious mental health problems, serious heart problems, and ख़वातीन के लिए जो यहाँ क्लास है जी, ये देखो जी, डर जाओ, अभी से अपने आप को ठीक कर लो वरना ये and then other issues as well. So physically बहुत सारे पेशेंट मेरे पास मेरी न्यूरोलॉजी की प्रैक्टिस के अंदर आते हैं जिनको सर दर्द होती है और बॉडी पेन्स होती हैं, एंड द कॉज हम उनको जब पूछते हैं सवाल होता है कि आपके ऊपर आजकल स्ट्रेस कितनी है या टेंशन कितनी ले रहे हैं, एंड देन दे से अ लॉट. सो दिस कैन कॉज दीज प्रॉब्लम्स एज वेल. एंड जो दूसरी प्रॉब्लम्स होते हैं जैसे हेडेक की कॉज में माइग्रेन हो सकती है या किसी और किस्म की हेडेक हो सकती है, तो उसको वर्स भी कर सकते हैं. तो उसको डील करने से बहुत बेनिफिट हासिल होता है. एंड ऑल द प्रॉब्लम्स जो वो फेस कर रहे होते हैं दे कैन बिकम वर्स एज वेल. और ये आई एम श्योर मोस्ट ऑफ यू हैव सीन समबडी इन स्ट्रेस जिसको एकदम यार मैनू दिल का दौरा पै गया, मैनू दिल का दौरा पै गया, हार्ट मेरा ईसीजी करो और ये सारा कुछ करो, सांस तेज हो रहा है. और जब आप उनको हॉस्पिटल लेके जाते हैं गाड़ी पे, रिक्शे पे या बस पे, and then you find out कि जी ECG बिल्कुल ठीक है, and then they say कि यार इसको एक Lexotanil दे दो यार, तो Xanax दे दो इसको, just calm down. So लग उनको वही रहा होता है, ठीक है, but obviously the cause is this. Emotionally, feelings of agitation, irritable हो जाते हैं, relate नहीं कर सकते, low self esteem हो जाती है, अलैदगी पसंद थोड़े से हो सकते हैं, depression के अंदर जा सकते हैं जो लोग बेचारे सफर कर रहे हैं. फीलिंग ऑफ बीइंग ओवरवेल्म्ड. जी मेरा अगले हफ्ते एग्जाम है, मैं तो तैयारी कर ही नहीं सकती, जो मर्जी हो जाए, किताबां साड़ दो, अग ला दो, तबाह कर दो, मैं नहीं दी, मैं ओवरवेल्म हो गया. तो दिस इज अ रिएक्शन दैट गोस. तो आप ओवरवेल्म नहीं, आप तैयारी कर सकते हैं, आपका जीपीए बड़ा अच्छा, आपकी तैयारी बड़ी अच्छी है, you just need to calm down and focus and make the bigger picture and then start again. Cognitive होते हैं जी ब्रेन फंक्शंस से रिलेटेड जो चीजें होती हैं. तो हमारे पास ये भी बहुत सारे लोग आते हैं कि जी हमें तो डिमेंशिया हो गया. डिमेंशिया आपने शायद सुना हो, एज के साथ साथ मेंटल फंक्शंस स्पेशली मेमोरी का जो लॉस होता है. तो जी वो क्या कहते हैं 30, 20, 40 इयर्स के लोग होते हैं कि जी चाबी भी रख के मैं भूल जाता हूँ, चाय बनाते हुए चाय भूल गए जी, उधर गए तो सारा कुछ खराब हुआ पड़ा था, और जी क्या कहते हैं ये काम क्या करने का. तो ये बीइंग फॉरगेटफुल जो इंसान है, ये उनको डिमेंशिया नहीं स्टार्ट हो गया, उनके ब्रेन फंक्शंस नहीं कम हो गए. इट मींस कि वो डिस्ट्रैक्टेड हैं because of some other pressing issue जो उनके ब्रेन के अंदर आ रहे, they're not focused. So inability to focus or concentrate, constantly worrying,
and mental fogginess कि वो जो काम करते हैं उसके ऊपर फोकस नहीं कर सकते, and we don't want that. कुछ बिहेवियरल चेंजेस भी आते हैं, चेंज इन एपेटाइट. कुछ लोग मेरे जैसे जो हैं वो अपनी स्ट्रेस आती है तो वी स्टार्ट ईटिंग मोर, कुछ लोग जो हैं वो स्टार्ट ईटिंग लेस, कुछ लोग अवॉइड करने लग जाते हैं, कुछ क्लिंगी हो जाते हैं, इंक्रीज यूज ऑफ ड्रग्स और स्मोकिंग, नर्वस बिहेवियर, और ये सारे इश्यूज आते हैं. सो अब इम्पोर्टेंट बात पे आते हैं, हाउ डू वी रिड्यूस एंड मैनेज स्ट्रेस. नंबर 1 है जी, बी ऑब्जेक्टिव. बीइंग ऑब्जेक्टिव क्या है जी? आप सिचुएशन को एक न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू से लें कि क्या मुझे जो सिचुएशन फेस हो रही है, जो मैं सफर कर रहा हूं या कर रही हूं, वो एक्चुअली इतनी खराब है भी कि नहीं है. तो उसका मैं एनालिसिस करूं कि व्हाट आर द वेज ऑफ गेटिंग आउट. लोग जो हैं वो इनसे हो जाते हैं कि नहीं होते. नहीं, बीइंग काम एंड एनालाइजिंग द सिचुएशन ऑब्जेक्टिवली हेल्प्स. Having a plan obviously helps. कोई चीज आप, Rome wasn't built in a day. They had a big plan in their mind. Other than that, आप अपना एग्जाम कैसे तैयार करें? यार मैं 3 महीने पहले, 2 महीने पहले, 1 महीने पहले तैयारी शुरू करूंगी, 2 घंटे पहले रखूंगी, 3 घंटे, 4 घंटे ये किताब करूंगी. तो having a plan obviously helps in mitigating the stress. आप डिस्कस कीजिए, अपने गाइडेंस काउंसलर से कीजिए, अपने फ्रेंड से कीजिए, अपने सीनियर से कीजिए, जो बंदा आपको लगता है कि दे आर गोइंग टू हेल्प यू. यू डिस्कस एंड यू वेंट. तो वेंट भी होता है जी, आपको पता जरूर होता है कि सोल्यूशन क्या है और हो जाएगा, लेकिन यू जस्ट नीड टू गेट दैट आउट. वो भी करें एंड डिस्कस. यू सीक गाइडेंस फ्रॉम योर सीनियर्स, फ्रॉम योर पेरेंट्स. आजकल मैंने देखा है कि हमेशा से, बल्कि कि हम जब इस प्रॉब्लम, किसी भी किस्म की प्रॉब्लम में होते हैं या किसी सिचुएशन में होते हैं, हम समझते हैं यार किसी को कहेंगे तो हमें शर्मिंदगी होगी, वो सोचेंगे कैसा है. हालांकि ऐसी सिचुएशन नहीं होती. व्हेन यू विल गो 2 or 3 years ahead, आप पसंद करेंगे कोई बंदा आपके पास आ रहा है और आप देखेंगे कि यार यही बंदा ठीक है, जो कि कम्स टू समवन एल्स फॉर गाइडेंस व्हेन दे नीड, एंड इट मेक्स थिंग्स सो इजियर. शर्माने की कोई जरूरत नहीं होती. शेयर, हैव गोल्स एंड बीइंग, ये बड़े अच्छे 2 लफ्ज हैं, organize and chaos, and I'm pretty sure ये Oxford Dictionary के अंदर antonyms as well. ठीक है, opposites जो हैं. तो being organized prevents you from a chaos. तो why not be organized most of your life, जितना भी आप हो सकें, rather than being in a chaos which will cause so many problems. Other than that, keep a positive attitude. बजाय इसके सोचने के क्या खराब हो जाएगा, ज़हन में रखो यार कुछ अच्छा भी तो हो जाएगा ना. ठीक है, सोच क्या पर्सपेक्टिव है. एक्सेप्ट इवेंट्स दैट यू कैन नॉट कंट्रोल. आई एम वेरी हैप्पी आप लोगों ने कोविड, क्योंकि ज्यादातर जॉनसन रिस्पांस नो था. यू नॉट स्ट्रेस बिकॉज इट्स समथिंग यू कांट कंट्रोल, इट्स समथिंग यू पासिंग थ्रू इट. इफ यू थिंकिंग ऑफ फिजिटिंग, उसके ऊपर ही इतना ज़हन फोकस कर लें. भाई ना हमने कोविड जो है ना वो की है, हम बस मैनेज कर सकते हैं ना, हम वैक्सीन बना सकते हैं ना, उसको ठीक कर सकते हैं. तो उसको लेके अपनी जिंदगी खराब करने की क्या जरूरत है. एंड दैट गोज टू ऑल द प्रॉब्लम्स. ये मैं आप लोगों को कॉन्सेप्ट जो है ना रिकमेंड करूंगा कि जस्ट पे अ गुड अटेंशन टू दिस. हर प्रॉब्लम के अंदर 2 किस्म की रिएक्शंस आ सकते हैं, बीइंग रिएक्टिव एंड बीइंग प्रोएक्टिव. रिएक्टिव क्या होता है कि कोई भी प्रॉब्लम आए उसके बाद उसको सॉल्व करना, उसके बाद उसमें स्ट्रेस में आना, उसके बाद सोचना कि अब क्या होगा. बीइंग प्रोएक्टिव इज कि एक तो पहले ही चीजों के लिए थोड़ा थोड़ा मैनेज करना, रिटायरमेंट के लिए सेविंग करना, फॉर एग्जांपल पूरे साल पढ़ना, अपनी सेहत के ऊपर काम करना, फिजिकली फिट रहना, एंड सो मेनी अदर थिंग्स. एंड जब वो आ जाएं तो हैव अ काम एंड कूल अप्रोच. इसकी एक एग्जांपल इसी तरह होती है कि जी कोका कोला की बोतल जो है ना वो रिएक्टिव है. जब आप उसको शेक करते हैं, उसको स्ट्रेस देते हैं, उसको खोलते हैं, तो वो सारी बाहर आ जाती है और गुस्सा भी दिखाती है और परेशान भी होती है और वो खुद खत्म हो जाती है और जमीन पे गिर जाती है. पानी की बोतल प्रोएक्टिव है. व्हेन यू गिव इट अ गुड शेक देन यू ओपन इट, तो पानी को कोई फर्क नहीं पड़ता. ठीक है, वो उधर ही रहता है एंड एबल टू मैनेज द सिचुएशन एंड मेंटेन इटसेल्फ. अदर देन दैट, मेडिटेट, फोकस. अगर आप लोगों में से कोई स्ट्रेस ज्यादा फेस करता है, आई रिकमेंड आप नेट पे सर्च करें PMR, प्रोग्रेसिव मस्कुलर रिलैक्सेशन. यू ट्राई योगा, you try Tai Chi and other things, and they really help. Or hyperventilation,
लंबे लंबे सांस लेना. It might sound कि यार ये क्या बात है, but it does help seriously. आप एक्सरसाइज करें, having 30 to 40 minutes of exercises 4 to 5 days a week is good. You eat well, have hobbies and interests. आपने मशीनें नहीं बन जाना कि जी आप जो है ना अपनी PS के ऊपर या इलेक्ट्रिकल के ऊपर जो है ना लग गए. आपने साथ साथ कुछ हॉबीज और इंटरेस्ट भी रखते हैं. They end up developing you, and I'm sure Dr. Ikra will concur later on जब आप जॉब्स के लिए जाते हैं या आप अपने बिजनेस स्टार्ट करते हैं, तो ये चीजें भी they pay you back a lot. Then set appropriate limits. हर किसी ने प्रेसिडेंट क्लिंटन या आजकल बाइडेन नहीं बन जाना या इमरान खान नहीं बन जाना, लेकिन जरूर कोशिश करें, लेकिन अपनी लिमिट भी रखें कि यार जरूरी नहीं है कि मैं जो है ना हर एग्जाम के अंदर जो है ना 100 में से 100 ले लूं. जितने मैक्सिमम मैं लूंगा ठीक है. आई मे बी हैप्पी एट 90 and I'm going to focus on that, क्योंकि maybe if you overshoot 90, you कहते हैं ना shoot for the moon even if you miss you land amongst the stars. So having good limits always helps, and give time to friends and family. अपने लिए time निकालें, friends के लिए निकालें, family के लिए निकालें. Lead a balanced life, and most importantly seek help. अगर आप इस problem को face कर रहे हैं, then ask someone for help. It may be a professional, it may be some senior, it may be any guidance counselor, it may be Dr. Ikra, it may be anyone else. Lekin why not? And now to the fun part of the presentation, I think. ये क्या कहते हैं, एक मैंने जादूगर टाइप जो इंसान ब्लैक मैजिशियन की तस्वीर जो इंसान बनाई है. तो जब स्ट्रेस नहीं होती तो फिर क्या होता है, हमारा मुआशरा ना लिटरली एवरीथिंग इज ब्लैक मैजिक, वूडू. ठीक है जी, काला जादू हो गया जी ਉਹਦੇ ਤੇ. ठीक है, ਉਹਦੇ पेट इच दर्द हो रही है, काला जादू. सिर इच दर्द हो रही है जी, ਉਹਦੇ ਤੇ तवीज़ां पै गई ने, पुप्पी ने कर ਦਿੱਤੀਆਂ ने, फलाने कर ਦਿੱਤੀਆਂ ने. तो हमारी सोसाइटी का ज़हन यही है कि अगर ये कुछ और हो गया ना तो अब ये तो कुछ हो रहा है. But it is usually some mental health issue जो कि हमें स्टडीज के साथ और दुनिया को देखने के साथ और वक्त के साथ पता चल चुका है कि जब ये कुछ ज्यादा बन जाता है, जिसको हम देखेंगे आगे आके कि क्या वजूहात हैं, क्या चीजें हो सकती हैं. We are just race through them because I want to finish early so that we can have some gupshup at the end. लेकिन जब भी कुछ और हो जाता है तो हमें लगता है कि जादू है, लेकिन it ends up being a psychological issue which is preventable, which is categorized and all sorts of things. We'll go through that. लेकिन लोग जो उनसे ना जादू कबूल कर लेते हैं, लेकिन वो मेंटल इलनेस को कबूल नहीं करते कि ना बोलना है ना मुंह से निकालना ही नहीं, जो दिमाग का मसला हो सके. यार मेरे पास पेशेंट्स आते हैं, वो आके कहते हैं डॉक्टर साहब इस मरीज ਨੂੰ जादू हो गया. मैं कहती यार ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨ ਚਿਮੜੇ ਵੇਖੇ ਨੇ ਕੀ ਯਾਨੀ ਕਿ कहते हैं ਵੇਖਿਆ. डॉक्टर साहब ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਲਓ, होया यही है. ठीक है, so they are so fixed in their mind, and when you tell someone that there may be mental illness involved, they are not willing to listen to it. तो ये हमने चेंज करना है. अगली कुछ स्लाइड्स इसलिए हैं कि आप ये डिजीज अंडरस्टैंड करें और आप ये स्टिग्मा को खत्म करें. अ मार्क ऑफ डिस्ग्रेस, किसी को साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होगी तो ये कोई बुरी चीज नहीं है, ये कोई डिस्ग्रेस नहीं है. अगर कोई डिप्रेशन में चले गया है, किसी की फैमिली में है, तो सो व्हाट, इट इज प्रेजेंट इन एंटायर वर्ल्ड, लेट्स डू समथिंग अबाउट इट. उसको कुछ बताओ बेहतर, उसको डॉक्टर के पास लेके जाओ. लेट्स गेट देम आउट ऑफ दिस प्रॉब्लम रादर देन लेबलिंग समवन और उसको कहना यार ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜब मसला आ गया, ठीक है, ते ਉਹਨਾਂ ਦੇ ग्लास ਵਿੱਚ पानी भी नहीं पीना. Literally this happens. तो what are common psychiatric disorders that we face, and I'm sure आपने यूनिवर्सिटी, और मैं आपको थोड़ी थोड़ी एग्जांपल्स इनकी दूंगा. आप कहोगे यार ये चीजें तो मैंने देखी हुई हैं अपनी जिंदगी के अंदर, अपनी यूनिवर्सिटी में देखी, मैंने क्लिनिक के अंदर, कॉलेज के अंदर देखी हुई है. सॉरी. तो मोस्ट कॉमन इज डिप्रेशन, क्लिनिकल डिप्रेशन, जो कि बहुत ही ज्यादा लोग डाउन हो जाते हैं. स्किज़ोफ्रेनिया आपने लफ्ज़ जरूर सुना होगा, जिसके अंदर लोगों को आवाजें आती हैं, डिस्टर्ब थॉट्स होती हैं. OCD, एंजाइटी डिसऑर्डर्स, बाइपोलर, पोस्ट ट्रॉमेटिक. तो एक एक स्लाइड हम इनकी सारों की देखेंगे. ईटिंग डिसऑर्डर्स. सो दिस इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिप्रेशन. जब कोई उम्मीद नजर नहीं आती, वो सारे वो जो सिचुएशन है ना, वो हो जाती है कि यू आर थिंकिंग कि अब जो इंसान जिंदगी मेरी तबाह हो गई है, ये बेहतर नहीं हो सकती,
and so many other things. The person who passes through depression, and there are a lot, even इतने कि हम मेडिकल कॉलेज की अगर बात करें जिनके मैं उनसे रिलेटेड हूँ, तो 97% जो मेडिकल स्टूडेंट्स हैं ना, वो 5 ईयर MBBS के अंदर क्लिनिकली सिग्निफिकेंट डिप्रेशन से गुजरते हैं, ठीक है, 97%. आपके यूनिवर्सिटीज के अंदर भी the figure must be obviously above 50 or maybe even close to this. So it is a big problem that most of us have shared. So some features which differentiate depression, जो कि normal अगर आप कहें कि जी sad feel कर रही है या clinically है, तो एक तो ये clinical depression जो है ना, lack of energy, ताकत खत्म हो गई है, कोई चीज अच्छी नहीं लग रही, ठीक है, lack of interest, पसंद सारी खत्म हो गई हैं, 2 हफ्ते से ज्यादा होती है. It makes significant disturbances in the life. उसकी जिंदगी को ही अफेक्ट करने लग जाते हैं. वो जो पहले काम करता था, सारा कुछ करता था, वो अब हो ही नहीं सकता. इसके अंदर आप सैड जरूर फील करते हैं, जो नॉर्मल डिप्रेशन है, लेकिन आप उसको कोप कर लेते हैं, आपकी जिंदगी पे इफेक्ट नहीं होता, ठीक है. इसको आप फेस खुद से कर सकते हैं. लेकिन अगर क्लिनिकली सिग्निफिकेंट डिप्रेशन हो गई है तो आपको थेरेपी भी चाहिए, आपको मेडिकेशन भी चाहिए. तो फीचर्स क्या हैं जी? मूड लो होना, अमूमन वेट गेन या वेट कम हो जाता है, नींद खत्म हो जाना, इंसोम्निया जो है वो डिप्रेशन का फीचर हो सकता है. अगेन बेस उसकी लो मूड होगी, खुशी खत्म हो गई है मेरी जिंदगी से, ये बेस है. लॉस ऑफ एनर्जी, फीलिंग ऑफ वर्थलेसनेस, एंड वेरी इंपॉर्टेंट, एंड आई वांट यू गाइस टू प्ले योर रोल इन दिस, रिकरेंट थॉट्स ऑफ डेथ, सुसाइडल आइडिएशन या सुसाइड अटेम्प्ट. अगर कोई बंदा सुसाइड का कह रहा है, टेक इट सीरियसली. अगर कोई बंदा सुसाइड कर रहा है, टेक इट सीरियसली, आई मीन एन अटेम्प्ट. अगर किसी बंदे को ख्याल आ रहे हैं अपनी जिंदगी खत्म कर लो, टेक इट सीरियसली. अगर आपको है, गो सीक हेल्प, गो टू अ डॉक्टर. अगर किसी को है, टॉक टू देयर फैमिली, टॉक टू डॉक्टर्स, टॉक टू यूनिवर्सिटीज. कितनी यूनिवर्सिटीज में हमने डेथ्स देखी हैं जो बच्चे हॉस्टल्स के अंदर जिनकी सुसाइड से डेथ हुई है. सो वी नीड टू प्रिवेंट दैट, एंड मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर is the cause of that. Treatment is there. आप मेडिसिन खाते हैं, 3-4-5 हफ्ते बाद आपकी तबीयत बेहतर होना शुरू हो जाती है, पहले जैसे हो जाते हैं. So it is a chemical change. और आप दवाइयों के साथ you can be like you were before as well. ये जी एग्जाम्पल है स्किज़ोफ्रेनिया की. दिमाग में आवाजें आना, बाहर से कोई होता नहीं, आवाजें आती हैं, लोग मुझे देख रहे हैं, लोग मुझे कत्ल करना चाह रहे हैं, FBI मेरे पीछे है, CIA मेरे पीछे है, ਮੈਨੂੰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਚੁੱਕ ਲੈਣਗੀਆਂ, ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਾ ਜੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ, so many things, and पैरानोया कि जी लोग मेरे खिलाफ हुए हैं, बहुत सीवियरली फॉर्म के अंदर हो सकता है. तो हेलुसिनेशंस कहते हैं आवाजें आना जबकि कोई नहीं आपसे बात कर रहा होता. मोस्टली ऑडिटरी हेलुसिनेशंस होती हैं स्किज़ोफ्रेनिया में, ठीक है. नेगेटिव सिम्टम्स होते हैं, अपना ख्याल नहीं रखते, बहुत सारा गुस्सा आ सकता है, एंड इसकी तरीका यार कुछ अजीब हो गए, अजीब हो जाना, स्ट्रेंज फीचर्स, ठीक है, मोस्टली जो आ रहे होते हैं कि पता नहीं यार, पुट्ठियां सीधियां है कितना. तो इट मस्ट बी लास्टिंग फॉर मोर देन 6 months, सिग्निफिकेंट डिक्लाइन इन फंक्शन, कि आप सोचेंगे स्किज़ोफ्रेनिया. ये लोग आपने देखे होंगे डेफिनेटली, जो हर चीज को A to Z साफ रखते हैं, ठीक है जी, कि इस कोई गंद मैं कहीं बर्दाश्त नहीं कर सकती जी, 1 सेकंड के अंदर कोई मसला हुआ, हर चीज पैटर्न जो है ना वो ठीक होना चाहिए. और इतने लोग, कई लोग हाथ धोते हैं, ये देखें हाथ धो धो के उनकी स्किन खत्म हो चुकी है, सफेद हो चुकी है और डैमेज हो चुकी है. तो ये जी OCD है. 2 किस्म के इसके फीचर्स होते हैं, OCPD और OCD. तो जो OCPD है, ये पर्सनालिटी डिसऑर्डर है, ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम बीमारी उसकी मुकाबले में, OCD के मुकाबले में कम है. लेकिन इसके अंदर ये है कि जी लोग समझते हैं कि जो हम कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं, और OCD वो होती है जिसके अंदर आपको ख्याल आते हैं और उसके ऊपर आपको कि जी सफाई या किसी भी चीज के बारे में कि जी ये खराब हो गया, आपको पता है कि वो नहीं हुआ, लेकिन आप कंपल्स हो गए हैं वो काम करने में. 50 दफा नहा रहे हैं दिन में, 100 दफा हाथ साफ करें, आपको पता है वो गलत है, लेकिन आपका सुकून नहीं आ रहा कि अगर मेरा हाथ गंदा हुआ, ठीक है. इसके अंदर भी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं. इसका भी ट्रीटमेंट जो है ना अवेलेबल है, थोड़ा डिफिकल्ट है लेकिन अवेलेबल है, एंड यू कैन हेल्प पीपल. आई एम गोना गिव यू अ फन फॉर अस टू से, लेकिन अनफॉर्चुनेट फॉर द पेशेंट. एक मेरे पास पेशेंट आए बहुत अरसे पहले,
और उनको ओसीडी थी, और वो ये राज जो होते हैं और टाइलें होते हैं उनका काम करते थे, घर की कंस्ट्रक्शन का। तो उनके ज़हन में ओसीडी आ गई कि ये टाइलें सीधी नहीं लगी हुई, तो वो हर रोज अपने पोर्च की टाइलें जो है वो दोबारा लगाते थे, और सुबह जब देखते थे तो उनको लगता था कि टेढ़ी लगी हुई है, एंड देन ही हैड टू टेक देम ऑफ एंड डू इट अगेन। तो इट वाज वेरी weird and very disturbing, but he got better with treatment, और फिर उनकी पोर्च जो है वहाँ जो टाइलें लग गई एक दफा वही लगी रही। जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर, we've seen it, ठीक है, पूरे दिन या ज्यादा टाइम के ऊपर एंजाइटी परेशानी होना मौजूद है। कुछ लोगों को सिचुएशनल होती है, ये स्पीच करने से पहले, डिबेट करने से पहले, क्लास के लेक्चर से पहले, फलां टीचरों को भी होती है, ठीक है। अगर ये ज्यादा होने लग जाए तो ये जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर होता है। इसके भी ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं, एंड यू शुड सीक देम। कुछ दवाइयों के साथ हैं, कुछ दवाइयों के बगैर हैं। सो बेसिक गोल ये है कि डिफिकल्ट टू कंट्रोल द वरी, जो पर चीज आपको परेशान कर रही है वो डिफिकल्ट है, और उसकी वजह से आपकी जिंदगी के ऊपर डिस्टर्बेंसेस आ रहे हैं। बस 2 स्लाइड्स रहेंगी। बाइपोलर डिसऑर्डर आपने नाम सुना होगा, एक फीचर आता है उसमें जी बाइपोलर मेनिया या हाइपोमेनिया का, मरीज बहुत तेज हो जाता है। आपने देखा होगा जी, नए नए कपड़े पहनना, मेकअप करना शुरू कर दिया, मैं बड़ी शैम हूं, मैं तो गाड़ियां उठा के फेंकूंगा, अपने सारे पैसे जो है मस्जिद के अंदर बांट दिए, नींद सोते नहीं, बातें करी जाना धड़ाधड़ फुल स्पीड के अंदर। ये उनकी एक फेज होती है, अमूमन साल में एक दफा आती है। और दूसरी फेज होती है डिप्रेशन, कि जी जो हमने पहले जिस तरह डिप्रेशन किया, तो ये साइकिल करती है, कभी इधर कभी इधर, कभी इधर कभी इधर। तो इनको हमने ना मेडिकेशन लगा के इधर रोकना होता है कि जी वो नॉर्मल है। तो ये अगर जब ठीक हो जाते हैं ना, बड़ी अच्छी तरह नॉर्मल रहते हैं जो बाइपोलर वाले होते हैं। तो यू मस्ट रिकग्नाइज मेनिया। तो रिमेंबर, मे बी यू फाइंड आउट, अगर कोई फंक्शन देखता है शाम को प्रोग्राम मजाक रात, तो मजाक रात के अंदर जो इफ्तिखार ठाकुर हैं वो गिटार वाले, आई डोंट रिमेम्बर द नेम, वो बने होते हैं। तो वो जो उनकी शक्ल है या वो जो उनका बिहेवियर है ना, वो हाइपोमेनिया के पेशेंट को उन्होंने रिप्रेजेंट किया हुआ है, कि कैप, मुंह पे मेकअप और वो सारा कुछ। तो ऐसे ही अमूमन अनफॉर्चुनेटली हो जाते हैं। पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर बुक्स में भी पढ़ते हैं, देखते हैं कि बहुत बड़ा कुछ बॉडी लाइफ के अंदर ट्रॉमा आया, किसी की डेथ हो गई, को बहुत बड़ा नुकसान हो गया, तो उसके बाद प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाते हैं, वेरी डिफिकल्ट टू मैनेज, ठीक है जी। इसमें क्या होना शुरू हो जाता है, बैड ड्रीम्स आती हैं, उनके बारे में ख्यालात जिनको लॉस कर दिया है, फ्लैशबैक्स आते हैं, एक्टिविटीज अवॉइड करना। तो इनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट की जरूरत होती है। एंड लास्टली कुछ ईटिंग डिसऑर्डर्स हम यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस के अंदर देखते हैं, बिंज ईटिंग, धड़ाधड़ खाई जाओ जी, 6 रोटियां खा ली हैं, ठीक है, पेट नहीं भरा। बुलिमिया, खुद खा के उल्टियां करना, जो हमारी फिल्म स्टार्स हैं बहुत सारी, वो ये करती हैं कि वेट ना हमारा गेन हो। जो एनोरेक्सिया है जी, कि पतला, ये सोचना कि मैं पतले नहीं हूँ, हालांकि बहुत पतले होते हैं, और उसके लिए अपना खाना जो है ना वो बंद करना। समरी ये है कि मैनेजिंग स्ट्रेस इन यूनिवर्सिटी कैन लीड टू अ हेल्थियर लाइफ एंड बेटर परफॉर्मेंस. Stress management can be done with behavioral modification and gives great results. Many psychiatric disorders are common worldwide in our country. Recognizing these disorders helps those who suffer from them. Treatment is available. Stigma should be removed. I thank you, and I thank Namal for this opportunity. And if anyone has any questions and answers, you can ask right now or send me an email at this email address. I hope that you guys enjoyed it and it wasn't too boring and you gained something out of it. If there's any questions, you guys can now go ahead and ask. Thank you so much, Dr. Gohar. That was wonderful. I thoroughly enjoyed it. I'm sure students have enjoyed it too. So teacher होने का फायदा उठाते हुए मैं एक क्वेश्चन पहले आपसे पूछना चाहूंगी, and then it will be up to the students. वो questions करेंगे, definitely they will have a lot of questions. So मेरा question ये है कि एक स्टूडेंट की लाइफ में जब, क्योंकि एक स्ट्रेस है जो नॉर्मली स्ट्रेस इंसान को होता है, और कुछ टाइम आपके ऊपर ऐसा आता है जब आपको हेल्प लेने की जरूरत पड़ती है, तो हाउ अ स्टूडेंट शुड नो कि दिस इज द टाइम कि हमें अब मेडिकल हेल्प की जरूरत है. अगर आप सेकंड क्वेश्चन, बिकॉज आप एक ही दफा रिस्पांस दे दीजिएगा, स्टूडेंट किस तरह से हेल्प ले सकते हैं, बिकॉज दे आर स्टूडेंट्स, हम प्रोफेशनल्स हैं,
just take the appointment और हम लोग कंसल्टेशन कर लेंगे, लेकिन स्टूडेंट Sure. के वो किसी से Yes. आउटरीच से वो हेल्प ले सके. थैंक यू. इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि जब वो आपकी लाइफ को चीज इफेक्ट करने लग जाए, आपके ग्रेड्स खराब हो जाएं, आपके रिलेशंस खराब हो जाएं, आपकी नींद वगैरह खराब हो जाए, आप उसको कंट्रोल ना कर सकें, आपकी एक्टिविटीज इफेक्ट होना चले शुरू हो जाएं, जो चीजें आप पहले एंजॉय करते थे अब वो ना कर सकें, यानी व्हेन इट स्टार्ट्स हैविंग एन इम्पैक्ट ऑन यू, तो देन यू मस्ट थिंक कि यार अब इसको खत्म करने का टाइम आ गया, अब मेरे से मैनेज नहीं हो रहा, अब टाइम है कि कुछ करें. तो उसके लिए इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट. आई एम श्योर जो हमारे DHQ हॉस्पिटल्स हैं और जो बड़े हॉस्पिटल्स हैं, आई एम श्योर मियाँ वाली और उस साइड के ऊपर भी बड़े हॉस्पिटल्स के अंदर देयर आर साइकियाट्रिस्ट, जिसको कंसल्टेंट साइकियाट्रिस्ट या डिस्ट्रिक्ट साइकियाट्रिस्ट कहते हैं. आप उनको जाके मिल सकते हैं एंड इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट. आई एम प्रीटी श्योर, या आई थिंक 1 या 5 रुपए की पर्ची बनती है. तो दे कैन हैव सेशंस, और क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट भी तमाम बड़े DHQ हॉस्पिटल्स के अंदर हैं, and we should go and meet them. And even I think कि medication भी if anyone needs तो वो भी free मिलती हैं. The students need not to be worried, and अगर ज़रूरत पड़े तो the DHQ will help them. So perfect. So students, आपके कुछ questions हैं तो just raise your hand और आप लोग question पूछ सकते हैं. समीना. वालेकुम सलाम. समीना, आपकी आवाज थोड़ी सी डिस्टॉर्ट हो रही है. Sir, my question is that, ma'am, आवाज आ रही है? जी. जी. My question is that sometimes we feel sad suddenly and we don't know the reason what's happened and we want to become alone. What happened means we don't know any reason and we are sad. ये again this is mostly a normal part of life. जो थोड़ा सा sad feel करना, आप उसको थोड़ी देर के लिए करते हैं या persistent अगर वो नहीं होता तो ये नॉर्मल सिचुएशन के अंदर आएगा. बहुत सारी उसकी जारी बात है, वजूहात होती हैं. कुछ नॉस्टैल्जिक टाइम के ऊपर आप बगैर वजह डाउन हो जाते हैं, या आप सीजनल इफेक्ट भी इसके अंदर आता है, जिसके सीजनल इफेक्ट कहते हैं मौसम चेंज होता है, आप थोड़ा डाउन फील करना शुरू हो जाते हैं. इसी वजह से गाने जो उनसे वो दिसंबर के बारे में बने हैं या बारिशों के मौसम के बारे में कि जी हम डाउन हो गए, उनके बारे में गाने बने हैं. तो अगर ये थोड़ा बहुत आप डाउन हो रहे हैं किसी इवेंट की वजह से, किसी स्ट्रेस की वजह से, किसी चेंज की वजह से, तो दिस इज नॉर्मल पार्ट ऑफ लाइफ और इसको भी हमें थोड़ा सा एंजॉय करना चाहिए. एंड वी शुड थिंक ऑफ स्ट्रेटजीज टू कोप विद इट. ठीक है, आप थोड़ा सा अपनी डाइट बेहतर कर लें, आप जो उनसे अपने दोस्तों से ताल्लुकात बेहतर कर लें, फैमिली से ताल्लुकात बेहतर कर लें, अपनी पसंद की चीजें करना शुरू कर दें. लेकिन प्रॉब्लम तब है अगर ये चीज जाए ही ना, तो वो प्रॉब्लम है. सो इट इज अ ब्यूटी ऑफ लाइफ के उसके अंदर थोड़ा सा आप कई दफा डाउन भी फील कर लेते हैं. नो प्रॉब्लम इन दैट. Perfect. So Sanya. अस्सलाम वालेकुम. जी सानिया. सर मेरा क्वेश्चन ये है कि अक्सर जो हम फोबिया कहते हैं वो किस वजह से होता है? कुछ लोग कुछ चीजों को देख के बहुत ज्यादा ओवर रिएक्ट शो करते हैं. Yes. तो फोबियाज जो होते हैं दे आर मैनी फोल्ड, और वो एंजाइटी डिसऑर्डर्स के साथ अमूमन रिलेट किए जाते हैं. और पर्टिकुलर सिचुएशंस के अंदर अगर आपको जाके एक अनकंट्रोल्ड एंजाइटी आना शुरू हो जाए तो वो फोबिया होता है. तो उसके ना 2-3 चीजें बड़ी ज्यादा इन्वॉल्व होती हैं. एक तो आपका कुछ लाइफ एक्सपीरियंसेस अगर डिस्टर्ब्ड रहे हैं, और ये कुछ जो हमारे साइकोलॉजिस्ट हैं उनकी थ्योरीज यही हैं कि ड्यूरिंग द लाइफ अगर आप जस्ट फॉर एग्जांपल बचपन के अंदर आप कोई बात कर रहे थे या कोई डिबेट कर रहे थे तो वो खराब होगी, तो मे बी यू डेवलप अ फोबिया फॉर दैट. तो कुछ तो एनवायरमेंटली गेन चीजें होती हैं, कुछ दे आर नेचुरल. कुछ एंजाइटी प्रोन पर्सनालिटीज के अंदर ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है, कुछ नेचुरल और नॉर्मल भी होता है. अगेन अगर 1000 लोगों के या 2000 लोगों के सामने जो उनसे है वो बोलना पड़े, तो इवन एक सीजन पॉलिटिशियन के लिए इट बिकम डिफिकल्ट, और उसके भी हाथ कांपेंगे एक दफा जाके ऊपर. देन दे गेट कंफर्टेबल. अगर ये रिएक्शन ज्यादा हो जाए तो ऑब्वियसली वो फोबिया या उस चीज के अंदर कन्वर्ट हो सकता है. सो इफ इट्स रिपीटेडली हैपनिंग,
तो इट इज फोबिया. एंड देन इस लेवल तक भी होता है कि पीपल कांट डू समथिंग, लिफ्ट्स के अंदर नहीं जा सकते, क्लोज स्पेसेस के अंदर नहीं हो सकते, टॉल स्पेसेस के अंदर नहीं जा सकते. वो फियर जो है ना वो आपको ओवरवेलम कर लेता है और आपकी बॉडी के अंदर जो है ना एक जो रिएक्शन आना है एंजाइटी का उसको एक बहुत ऊपर लेवल के ऊपर ले जाता है. तो उसको अगेन बात यह है कि डील कैसे करना है. तो डील उसके अंदर मुख्तलिफ सिचुएशंस के हिसाब से आता है. अगर तो एपिसोडिक है कि जी पर्टिकुलर चीज से पहले ही आना है तो कुछ आप उस वक्त मेडिकेशन ले सकते हैं अगर वो आप अवॉइड नहीं कर सकते. कुछ में ट्रेनिंग आप उसको करते हैं कि स्लोली उसको इंट्रोड्यूस किया जाता है जिसके अंदर पहले किसी हद तक उसके ऊपर लेके जाए, आधे मिनट के लिए लेके गए, 1 मिनट के लिए लेके गए, सुपरवाइज लेके गए और फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता उसको कंफर्टेबल करें. एंड देन कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी जो डिस्कशन के साथ कि उसके जो फियर्स हैं वो क्यों आ रहे हैं और उनको एड्रेस करना. तो some and most phobias can be managed with these routines. And then again अगर बात है कि जी क्यों होता है, that it is a heightened anxiety response जिसकी कई वजूहात हो सकती हैं. All right, Danish. Yes, ma'am. Am I audible? Yes. Okay. सर कुछ लोग होते हैं जिनको हेल्प की जरूरत होती है, उनकी कंडीशन भी बहुत ज्यादा सीरियस होती है, लाइक यू नो दैट सुसाइडल टेंडेंसीज एंड ऑल दैट स्टफ. बट जब उनकी हेल्प करने की कोशिश की जाए तो वो उस हेल्प को रिफ्यूज कर देते हैं. लाइक ऐसा बिहेवियर कहते हैं कि बस मुझे ये पेन में रहना है, मुझे इसी कंडीशन में रहना है, मुझे हेल्प नहीं चाहिए, मुझे इससे बाहर नहीं निकलना, मैं आदी हो गया हूँ या हो गई हूँ, लाइक इस तरह की बातें. सो व्हाट शुड वी डू विद देम? दानिश बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका, रियली वंडरफुल. इसके ऊपर आपने नंबर 1 व्हाट आई थिंक इज आपने गेज करना है कि प्रॉब्लम वो कितनी है. ठीक है, अगर तो प्रॉब्लम उसको इतनी है कि उसका थोड़ा बहुत जो है फंक्शनैलिटी के ऊपर प्रॉब्लम आ रही है, थोड़े बहुत उसके रिलेशंस पे माइनर प्रॉब्लम आ रही है, तो आपने उसको अपनी सपोर्ट जो है ना वो इंक्रीज करनी है. यू डू, वो बेशक रिफ्यूज करते हैं, यू ऑफर सपोर्ट, यू बी देयर, बाकी फ्रेंड्स जो उनसे हैं वो भी हुए, आप शेयर करें. अगर ये सिचुएशन जो है again it is their responsibility to get out of it, लेकिन it is your responsibility to help them as much as you can. तो आप अपनी तरफ से अपना पूरा रोल प्ले करें. लेकिन अगर सिचुएशन आ जाए जब सुसाइडल टेंडेंसी आ गई है या आपको पता लग गया है कि इसका ज़हन जा रहा है, चले गया है या कर चुके हैं या कट्स लगाए हुए हैं बॉडी पे, सारे रूल्स खत्म हो जाते हैं. यू मस्ट इन्फॉर्म द फैमिली. कोई फ्रेंडशिप की इंपॉर्टेंस नहीं है अगर किसी ने वादा दे दिया, मैंने कसम दे दी है तुमने दानिश ये बात किसी को जाके नहीं बतानी, ऐसा नहीं होता. द पर्सन कैन डाई और उसकी पूरी फैमिली सफर करेगी, आप सफर करेंगे, आपके ज़हन में आएगा बाद में कि मैं उस टाइम पे कुछ इंटरवेंशन करता. तो ये SOS होता है. इसके ना यूके के अंदर या दूसरे मुल्कों के अंदर भी और पाकिस्तान के अंदर भी गाइडलाइंस ये हैं कि आपने सिचुएशन थोड़ी सी टेक ओवर कर लेनी है. एंड देन आप उनकी फैमिली को भी बताएं, आप यूनिवर्सिटी को भी इन्फॉर्म करें, आप डॉक्टर्स को भी बताएं. जब वो बेहतर हो जाएंगे तो वो आपका शुक्रिया अदा करेंगे. 100% ऑफ द टाइम दे एंड अप थैंकिंग यू कि उस टाइम के ऊपर आपने मेरी मदद की थी. क्योंकि जो डिप्रेस्ड इतनी प्रॉब्लम है ना उसको टनल विजन हो जाता है. टनल विजन होता है कि कोई चीज नजर ही नहीं आती, अगेन कोई उम्मीद नजर नहीं आती. ठीक है, आप उसको होप के अंदर लेके आने के लिए आपको जो थोड़ी इंटरवेंशन करनी पड़ेगी. सो आई होप इट क्लियर्स कि अगर थोड़ी बहुत ही प्रॉब्लम है तो उनको चलने दो, उनको सपोर्ट दो. अगर ज्यादा प्रॉब्लम आती है then you just intervene and then you tell and then take charge of the situation. आपने नहीं करना, लेकिन उनकी फैमिली वगैरह ने करना है. आप अपनी रिस्पांसिबिलिटी लेकिन पूरी करें. All right, sir. Thank you. Alvina. Assalamu alaikum. Can you please hear me? Yes. ओके, एक्चुअली मेरे 3 क्वेश्चंस थे. फर्स्ट तो वैसे जैसे दानिश भाई ने किया उसी से रेलिवेंट था, मुझे उसका आंसर मिल गया है. और जो बाकी 2 हैं एक इस तरह से है कि ना अगर सपोज मैं अपना ही बताऊं तो हल्का सा भी स्ट्रेस हो तो उसका हेल्थ पे इफेक्ट चला जाता है फौरन से, लाइक स्टमक का इशू हो जाना या स्किन एलर्जी हो जाना. तो मैं चाहती हूँ कि स्ट्रेस हो ही ना, मतलब स्ट्रेस अगर कोई स्ट्रेस वाली बात होती भी है तो वो मैं उसको ज्यादा फोकस ना करूँ, और ऐसा मुझसे होता नहीं है ना एक्चुअली. तो इसको ओवरकम करने के लिए मुझे एक तो कोई मतलब चाहिए, मेथड चाहिए. और
तो इसका आप आंसर करें, फिर मैं नेक्स्ट बताती हूँ। नेक्स्ट अच्छा ये क्वेश्चन है कि मेरी जैसे नेचर है ना, मैं चिल करने वालों में से फन इस टाइप की है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि छोटी सी बात पे भी एग्रेशन वाला सीन क्रिएट हो जाता है, तो मैं इसको भी ओवरकम करने के लिए आपसे पूछना चाहती हूँ। अलवीना, पहले तो इट्स ब्रेव कि आपने डिस्कस किया है। डेफिनेटली ये चीजें ऑलमोस्ट एवरीवन सारे ही फेस करते हैं, लेकिन अगर आप इसको ज्यादा फेस कर रही हैं, अगेन जो हमने स्ट्रेटजीज कोपिंग विद स्ट्रेस की थी, तो उसको आपको थोड़ी सी उनमें से एम्प्लॉय करनी पड़ेंगी। यू नीड टू बी मोर प्लान्ड, यू नीड टू बी मोर प्रोएक्टिव। उसके अलावा आप थोड़ा सा जो मैंने 2-3 चीजें कही थी, एक्सरसाइज, योगा, प्रोग्रेसिव मस्कुलर रिलैक्सेशन, ये आपने जरूर देखनी है। जब आपकी तबीयत इस तरह आपको लगे कि एंजाइटी की, आप उसको परफॉर्म करें, आप कहेंगे यार ये जबरदस्त। लड़कों को मैं कहूंगा कि वो खूबसूरत खवातीन ऐसी बात, इट जस्ट फन, लेकिन उन्होंने पीएमआर यानी क्या कहते हैं, उनके जो जिम इंस्ट्रक्टर्स हैं उनकी आपको इजीली मिल जाते हैं यूट्यूब के ऊपर, तो यू जस्ट फॉलो देम फॉर 5-7 मिनट्स, आप देखेंगे बहुत ज्यादा चेंज आता है। एंड देन जो चीज आपको एंजाइटी स्ट्रेस कर रही है, आप उसको एनालाइज करें कि ये क्यों मेरे साथ ये जो है ना हो रहा है, और इसकी ऑब्जेक्टिव रियलिटी क्या है, क्या ये चीज मुझे खराब करेगी, अगर करेगी तो मैं इसके लिए क्या कर सकता हूँ, यू मेक अ प्लान फॉर दैट। तीसरा, जो कुछ ये हमने पहले बात नहीं की है, जो अब हमारे प्रेजेंटेशन में रह गए हैं, तो उनको फायदा होगा। चाय, कॉफी, कोल्ड ड्रिंक्स, फिजी ड्रिंक्स, रेड बुल्स और ये सारी चीजें, they end up increasing anxiety। इनके जो केमिकल कंपाउंड्स हैं उनकी फॉर्मुलेशन के अंदर मौजूद है कि वो एंजाइटी को इंक्रीज करते हैं, तो इनको छोड़ने से भी आप जो है ना वो कर सकते हैं, अच्छी यानी एंजाइटी लेवल आपका कम हो सकता है। सो मे बी यू शुड एम्प्लॉय ऑल दी स्ट्रेटजीज, एंड देन जब आप मैच्योर होते हैं, ग्रोथ के साथ आपका मैच्योरिंग टाइम है, तो स्लोली बट श्योरली you are able to cope with these situations better। And then again, if it becomes very difficult, तो साइकोलॉजिस्ट के पास जाएं, साइकोलॉजिस्ट के साथ गप्पे लगाएं, और उनको भी गप्पे लगाने का शौक होता है। मेडिकेशन इज नॉट ऑलवेज नीडेड, मोस्टली नॉट नीडेड, तो वो आपको कोपिंग स्ट्रेटजीज आपके हिसाब से कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी करके भी बना सकते हैं, तो इट सॉल्व्स विद दैट। तो आपका तीसरा क्वेश्चन जो था वो रिपीट हो सकता है? नहीं, आई थिंक 2 क्वेश्चंस ही थे, तीसरा आंसर हो चुका है, दानिश का क्वेश्चन ही था। हाँ, नहीं वो दूसरा। और sir, thank शीबा you. अशरफ का जो है ना चैट रूम के क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा है कि मोस्टली ड्यू टू स्ट्रेस एट नाइट टाइम, आई वांट टू स्लीप, माय माइंड आल्सो टायर्ड, माय बॉडी वांट्स रेस्ट बट आई कांट स्लीप। तो अगर ये कुछ टाइम के ऊपर हो रहा है, तो कुछ गुड स्लीप हैबिट्स आपको जो है ना इजीली इंटरनेट से मिल जाएंगी, एंड बिहेवियरल मॉडिफिकेशंस फॉर अ गुड स्लीप, व्हाई डोंट यू एम्प्लॉय देम फर्स्ट। उसमें क्या होता है कि आपने मोबाइल और टीवी जो अपने रूम में नहीं रखना, ठीक है, आपने फिक्स टाइम के ऊपर ही सोना है। बेशक एग्जाम है, जो भी आपने 11 बजे का सोचा है तो आप 11 बजे ही करेंगे, कमरे की लाइट कम होगी, आप गर्म दूध का कप पी के सो सकते हैं, यू कैन टेक अ हॉट शावर इन विंटर्स, ठीक है। उसके अलावा आप शाम 6 बजे या मगरिब के बाद आप चाय या कॉफी नहीं पिएंगे, सुबह के टाइम लेंगे, शाम के बाद आप एक्सरसाइज नहीं करेंगे, ठीक है। आप हम अगर थोड़ा सा एज ए मुस्लिम कंट्री बात करें, आप कुछ तिलावत करके जो उनसे वो सो सकते हैं, आप आयतुल कुर्सी जो भी आप करते हैं वो थोड़ा रिपीट कर सकते हैं, यू कैन जस्ट रिलैक्स। तो these interventions improve sleep by a lot, so check them out, yeah। ओके, सो क्या आपका कोई क्वेश्चन है या आपका पुराना हैंड ही रेज हुआ है? Yes, ma'am, I have a question. Actually, I have 2 questions. Question is that how we can trust on a particular person, that how we know that this person is able to trust. And the second question is related to phobia. And sometimes we have phobia, and even we not want to know the name of that animal or thing. Means my condition become very horrible, and I want to run off that place if I and see the animal, means a particular animal. And how we can means how I can out of it. आई थिंक कोई फोबिया का शायद सबको समझ आ गया, डॉक्टर गोबर? हाँ, यानी ये कहते हैं
अगर तो एनिमल जो है ना वो लिजर्ड्स हैं, तो ये तो खातून यानी पूरी दुनिया के अंदर खवातीन को प्रॉब्लम है जो गेको लिजर्ड्स होती हैं उनके साथ जो फोबिया है, या इवन स्नेक्स और थिंग्स लाइक दैट। अगर तो वो कॉमन एनिमल है, जैसे बिल्ली है या डॉग है, देन इट माइट बी अ लिटिल बिट ऑफ प्रॉब्लम। तो कैट, तो कैट के साथ ये है कि if it is affecting your life, then you must slowly introduce yourself. Maybe क्या कहते हैं, जो furry cat is some kind of cat that you like, you can see some pictures, you can watch a documentary, something that is comfortable. So slowly उसको अपनी life में introduce करें, and it helps. So very slowly work with desensitization approach जो है ना वो employ करें, और जो चीज आपको cat से परेशान कर रही है, जो उसका base है, and then you it is too much in Namal, yes, it is too much in all university, बल्कि Mayo Hospital जो लाहौर का है बड़ा मशहूर है, उसके they're all wards. तो आप slowly जो है ना Google पे images देखें, आप documentaries देखें, you try to get rid of the core thought जो आपको तंग करती है कि बिल्ली क्या कर लेगी, उसके बारे में थोड़ी रिसर्च करके desensitize करें. If it helps, again, if it does not, then phobias को remove करना can be really difficult, and maybe you need to spend time with a psychologist जो कि slowly आपको जो है ना इसके ऊपर work करें. That can help. लेकिन कई दफा खुद भी जो है ना आप उसको cope कर सकते हैं slowly. किस तरह एक बंदे को trust करें? Well, this is your analysis. Life के अंदर जो है ना ये ग्रोथ के साथ स्किल जो है वो डेवलप्ड होता है, और इवन जो बहुत ज्यादा लोग एक दूसरे को ट्रस्ट करते हैं. मैं परसों चौथ जब इमरान खान साहब ने इंटरव्यू दिया मंसूर को, तो आई वाज लिसनिंग टू दैट. तो उसके अंदर वो बार बार कह रहा था कि आपको कैसा महसूस हुआ कि जहांगीर तरीन को आप इतना दोस्त समझते थे तो उसने ऐसे किया. तो खान साहब ने कहा कि मुझे दुख हुआ. तो ट्रस्ट करने के लिए आप एट्रीब्यूट्स देखते हैं, उसका पास्ट रिकॉर्ड देखते हैं, उसके काम देखते हैं, अपना व्यू बनाते हैं. देन इफ यू एग्री, आपका ऑब्जेक्टिव ओपिनियन ये है कि पर्सन इज ट्रस्टेबल, तो यू कैन ट्रस्ट. तो जरूरी नहीं है भाई खान साहब नहीं समझ सके, वो वजीर आजम पाकिस्तान है, तो समटाइम्स लोग ट्रस्ट तोड़ते हैं, बट यू मस्ट बी रेडी फॉर दैट मेंटली. हाउ डज डिप्रेशन लीड टू कमिटिंग सुसाइड? लुकमान इजाज. वेल, केमिकली जो है ब्रेन के अंदर सेरोटोनिन और नॉन एपिनेफ्रिन के जो लेवल्स हैं वो कम हो जाते हैं, और ब्रेन के अंदर जो नेगेटिव आइडियाज हैं वो ज्यादा हो जाते हैं. तो आप जो पेशेंट है उसको सुसाइडल आइडिएशन आना शुरू हो जाती है, और उसकी वजह से उसको सुसाइड जो है ना वो हो जाती है. जिंदगी में कोई अच्छी चीज नजर नहीं आती. केमिकल चेंज बेसिकली ब्रेन के अंदर होता है, तो उसकी वजह से. हाउ स्मोकिंग एंड थिंग्स लाइक अल्कोहल एंड ड्रग एडिक्शन कॉज डिप्रेशन. इसके ऊपर पूरी किताबें लिखी हुई हैं, पूरी मूवीज लिखी हुई हैं. लेकिन चीज ये है कि जब आप सब्सटेंस अब्यूज करना शुरू कर देते हैं तो वो अगेन आपके ब्रेन में केमिकल्स भी चेंज करते हैं. देन आपकी लाइफ के अंदर और भी चीजें लॉस होती हैं, पैसों की कमी आती है, आपकी एक्टिविटीज कम होती हैं. तो अल्टीमेटली वो आपको अब्यूज डिसऑर्डर, सब्सटेंस अब्यूज डिसऑर्डर के अंदर ले जाती हैं, जिनके से एक फीचर जो है वो डिप्रेशन होता है. तो ओवरऑल सिचुएशन ऐसी क्रिएट हो जाती है, इंक्लूडिंग केमिकल्स, इंक्लूडिंग जो सिगरेट के अंदर एक्टिव इंग्रेडिएंट्स हैं एंड अल्कोहल, वो आपको ये सारी प्रॉब्लम्स कॉज कर सकती है. नॉट ऑलवेज वो आपको डिप्रेशन कॉज करेंगी, वो आपको साइकोसिस या मेनिया ये इस तरह की चीजें भी कॉज कर सकते हैं. प्रीटी डेंजरस. रीबा क्वेश्चन है, सर कभी कभी जो मुझे छोटी सी बातें, छोटी भी टेंशन हो तो मुझ में थोड़ा सा चिड़पन आ जाता है. मीन आई फील ग्रम्पी. हाउ कैन आई ओवरकम दिस? एक बड़ी अच्छी स्ट्रेटजी इसके अंदर ये होती है, यू डिले योर रिएक्शन. ठीक है, कुछ लोग तो कहते हैं कि जी किसी ने अगर कोई बुरी बात की है या किसी ने कुछ किया आपको, यार एक दिन मैं कुछ नहीं करूंगा इसके बारे में, या 8 घंटे में कुछ नहीं करूंगा, मैं इसके बारे में अभी सोचूंगा ही नहीं. यू डिले द थॉट प्रोसेस. तो आपको जब इंफॉर्मेशन आप डिले करके उसको प्रोसेस करते हैं तो द रिएक्शन बिकम्स बेटर. तो यू कैन डू दैट. मे बी यू कैन राइट इट डाउन, मे बी यू कैन एनालाइज इट, साइको एनालिसिस जिसको कहते हैं, and then it can help you sort the situation out a little bit better. Okay, so आपका कोई क्वेश्चन है या पुराना हैंडी रेज हुआ? Yeah, ma'am, I have a question. Sir, actually ये थोड़ा मेरा मतलब पर्सनैलिटी ट्रेट का मसला है, like stress related और ego related anger issues.
और मुझे इससे बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है डेली लाइफ में। लाइक वैसे तो काम रहने की कोशिश करता हूँ एंड मतलब थोड़ा बहुत कोप करने की कोशिश करता हूँ अगर नॉर्मल सिचुएशन में, लेकिन एक बार अगर ट्रिगर हो जाए तो फिर मतलब इस हद तक चला जाता है कि फिर किसी को खातिर में नहीं लाता। लाइक अंदाज़ा आप इससे लगा सकते हैं कि इतनी एक्सट्रीम कंडीशन भी हुई कि I was in a hospital once and hospital की administration कुछ cooperate नहीं कर रही थी and I was really angry। और unfortunately हमारे डिप्टी कमिश्नर थे जो साबका थे, वो वहाँ पर राउंड पे थे, तो मैं उनको सीधा हो गया था कि आपने कैसी मैनेजमेंट रखी हुई, और तकरीबन 5-7 मिनट वो मुझे सुनते रहे थे। इस हद तक भी बात चली जाती है कि मतलब एंगर रिलेटेड इश्यूज मुझे होते हैं। सो हाउ कैन आई कोप विद दैट? एंगर के अंदर आपको यू मस्ट लुक एट कॉन्सिक्वेंसेस। तो समटाइम्स हम जब गुस्सा करते हैं तो यू डोंट रियलाइज द कॉन्सिक्वेंस दैट कैन हैपन। तो सबसे पहले अगेन इट कम्स विद मैच्योरिटी, लेकिन आपको कंसिडर करना चाहिए कि डिप्टी कमिश्नर वहाँ पे मौजूद है, हॉस्पिटल की एडमिनिस्ट्रेशन मौजूद है, तो गुस्सा करने से पहले यू जस्ट टेक 5-7 सेकेंड्स। तो आप सोचो यार कि क्या कहते हैं, अगर डीसी ने माइंड कर लिया वो फिर वो क्या कहते हैं क्या होगा। हॉस्पिटल की अगर स्टाफ है तो वो अगर अपना काम कर रहे हैं, अगर मैंने उनको गुस्से से किया तो 5% 10% चांस है कि वो बेहतर परफॉर्म कर दें, 80-90% चांस है कि वो मेरे से चिढ़ जाएंगे और मुझे बाद में जो उनसे ना उस तरह केयर नहीं देंगे जिस तरह पहले माड़ी मोटी जो मिल रही है वो भी नहीं होगी। तो कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एक्शंस, इसको अंडरस्टैंड करना जो है ना, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक्सक्यूज मी सर असल में होता ही है कि उस वक्त जब ये कंडीशन होती है ना, तो कॉन्सिक्वेंसेस की परवाह खत्म हो जाती है। पता होता है कि इसके ये कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, लेकिन उस वक्त ये नहीं ज़हन में आता, बस जो होगा देखा जाएगा, तो वो ये कंडीशन हो जाती है। So then you slowly again try to delay your reaction कि यार you अपने आप से conversation करो कि अगर मैं यार अभी ठहर के जो इंसान ये करते हैं, then ठहर के, and बजाय इसके कि आप burst करो, you ask someone else to do this same thing for you, and then you review again the consequences। आप अपने आप को किसी और चीज के थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करो उस टाइम के ऊपर, शिफ्ट योर माइंड, थोड़ी बहुत स्ट्रेटजीज शिफ्ट करने से व्हाट वर्क्स फॉर यू विद टाइम। और जब आपको 2-4 लोग इसके आगे सुनाएंगे भी तो इसको जो इंसान देन आपकी जो रिएक्शन है ना वो थोड़ा सा चेंज होगा। एंड इट डज हैपन कि वो आप जा रहे हो यार सड़क के ऊपर किसी को 2-4 सुना दी तो समटाइम्स अगला बंदा भी सुना देता है, तो नेक्स्ट टाइम यू आर लिटिल बिट मोर केयरफुल। लेकिन बट द बेस्ट थिंग इज कि यू अवॉइड इट योरसेल्फ। तो यू रिकग्नाइज योर ट्रिगर्स कि मुझे ये चीजें जो उनसे ना वो अपसेट कर रही हैं, एंड देन यू मस्ट बी मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर इट। आपको पहले से जहन थोड़ा सा बना होना चाहिए यार मैंने वहां जाके ऐसा नहीं करना। एक चीज, गुस्सा करने से मेरा अपना दिन उसके बाद खराब होता है। जब मैं गुस्सा होता है तो उसके बाद मेरा अपना मूड 2-3 घंटे के लिए खराब होता है, किसी को कोई इम्पैक्ट उससे नहीं आता। तो व्हाई एम आई डूइंग दिस सर्विस टू माय ओन सेल्फ? जिंदगी के अंदर एक मकसद सुकून हासिल करना है, तो यार सुकून तो चुप करके भी उस सिचुएशन के ऊपर या उसको अच्छी तरह हैंडल करके भी हो सकता है। तो दिस इज आई थिंक हाउ यू शुड डील विद सच सिनेरियोस। ऑलराइट सर, थैंक यू। परफेक्ट। सो डॉक्टर गोहर, अगर आपके पास चैट में कोई क्वेश्चन नहीं है तो हम वाइंड अप करें। Yes, I think this is it then. Yes, nice talking with all of you guys. A really intelligent bunch of students. I'm sure you guys will do good in your life, and I'm impressed, much better than some of the other university students that I've met and talked to. Thank you so much. Thank you so much, Dr. Gohar, on behalf of the students. Thank you. Thanks a lot for your time. It was Welcome. wonderful. और आपको हम शायद फ्यूचर में भी तंग करते रहेंगे। Yes, sure, why not? ओके, थैंक यू सो मच। चला आप इस क्लास मैं इंशाल्लाह ये YouTube पे अपलोड कर दूंगी। अगर किसी का क्वेश्चन हुआ तो ऑफ कोर्स वी विल डू द कन्वर्सेशन थ्रू द ईमेल। Okay, thank you, जी. Allah. Thank you. Allah Hafiz.